Okay, so we already seen the reflection of plane wavefront. Now, next topic is refraction. Refraction of plane wavefront from plane surface. Okay, so next concept is what? Refraction. Refraction of plane wavefront from plane surface. From plane surface. Okay. So refraction of plane wavefront from plane surface. तो इसमें हमको क्या देखना है? रिफ्रैक्शन देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड किसका? कौन से वेवफ्रंट का? प्लेन वेवफ्रंट का. कहाँ से? प्लेन सरफेस. ओके. सो नाउ रिफ्रैक्शन. वैसे एग्जैक्टली में रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट. ये ऑलरेडी आपका हो गया सब ऑप्टिक्स में. सो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द रिफ्रैक्शन का लॉज. रिफ्रैक्शन का अलग अलग लॉज क्या है वो लॉ देख लेते हैं. फिर हमको रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट देखना है एंड रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूफ करना है. ओके. सो फर्स्ट वी विल सी द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज फर्स्ट लॉ. व्हाट इज फर्स्ट लॉ? तो फर्स्ट लॉ सेज that for a given pair of media means अगर अपने पास दो मीडियम. ओके. So for a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant. It remains constant. Okay, I am repeating again. What is first law of refraction says that? So it is nothing but for a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant. Okay, and this constant we know कि आप this is after proving we know कि this comes to be what? Refractive index. ये जो आता है उसको क्या बोलते हैं? Refractive index of denser medium with respect to rarer medium, or we can say refractive index of second medium with respect to first medium. So that is our first law. Sin I upon sin R is constant. That is called as mu, refractive index. And this law is famous, known as what? Snell's law. Snell's law of refraction. By the way, again, this law is not first given by Snell's. ये भी Snell's ने नहीं दिया था. उसके पहले like जैसे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी में पहले न्यूटन्स लॉ किसने दिया था? कॉर्पस्कुलर का लॉ, पार्टिकल लॉ किसने दिया था? डेस्कार्ट. तो here also this law is first given by Descartes. D-E-S-C-A-R-T, Descartes. So Descartes given first time this law sin I upon sin R is constant for a given pair of media. But later it is well known as what? Snell's law of refraction. So that is the first law of refraction. Here we know what is I. So here I is angle of incidence and R is nothing but. So what is I? I is angle of incidence. I is angle of incidence and angle R is nothing but angle of refraction. Angle of refraction. Okay. Now the second law again same here, similar to reflection. तो जैसे रिफ्लेक्शन में था वैसे यहाँ पे भी है. तो यहाँ पे सेकेंड लॉ में हम क्या बोलते हैं कि दैट इफ दिस इज सपोज ये अपना फर्स्ट मीडियम है, मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, मीडियम 1 and 2, and this is normal. Suppose this is normal. Okay, and this is incident ray, this is refracted ray, this is the angle of incidence I, this is R. So second law says that this incident ray, refracted ray and normal all lies in same plane. Similar to reflection. Reflection का second law जैसा ही है same. Incident ray, refracted ray and normal all lie in same plane. Means कैसा होगा? अगर ये incident ray है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और यहाँ पे होगा नॉर्मल. सो ऑल विल लाई इन अ सिंगल प्लेन. सब सिंगल प्लेन में रहेगा, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा. दैट इज अवर सेकंड लॉ. सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दिस ऑल थ्री लाई इन अ सिंगल प्लेन. ऑल थ्री लाई इन अ सिंगल प्लेन. तो ये है अपना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ वी विल सी दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. तो प्लेन वेवफ्रंट का रिफ्रैक्शन देखेंगे. ठीक है. Okay, so now we know if for plane wavefront what we require. For plane wavefront source का requirement कैसा है? तो source should be anything, ऐसा भी चलेगा but it has to be at infinite distance.
तो इनफाइनाइट पे होगा, हिंस क्या होगा, रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल. सो सपोज कंसिडर टू मीडियम. Consider this is the interface separating two media. Okay, so suppose this is medium 1, that is rarer medium. This is medium 2, denser medium. And speed of light in this medium it say c1, in this medium it is c2. Okay, and we have to see what refraction of plane wavefront. So plane wavefront again consider like parallel rays. तो ये parallel rays like this. So when this parallel rays डायग्राम अगेन जैसे आपको मैंने रिफ्लेक्शन में बताया वैसे मैं इसमें बता दूंगा कैसे ड्रॉ करना है एग्जैक्टली में. तो यहाँ पे क्या होगा, when this parallel ray will come like this, कि अगर ये रे ऐसे आ रहा है, then when this ray will be at this instant, अगर हम यहाँ पे लोकस फाइंड करेंगे तो we will get this as a wavefront. This as a plane wavefront. Now this wavefront will move. As ray of light will move, this wavefront will also move. And when this lower वाला, नीचे वाला ray जब यहाँ पे आ जाएगा, so at that time ये ऊपर वाला ray already हवे में ही है ये, तो ये surface पे नहीं आया, ये already कहाँ पे, हवे में. ठीक है. So say example, this is A, इसको क्या बोलते हैं, B. This is A, B. What is AB? So here AB is nothing but incident plane wavefront. Okay, incident plane wavefront. इसको डायग्राम में वैसे ड्रॉ कर लो लाइक एग्जैक्टली में क्या होगा, एग्जैक्टली में दिस इज AB, तो उसके पहले एक ऐसा कुछ रहा होगा A1 B1, दिस इज A2 B2 like this. And wavefront wave normals are perpendicular, hence we can draw like this. Okay, now already नीचे वाला लाइट कहाँ पे आ गया, वो इंटरफेस पे आ गया, मींस बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया पे आ गया है. बट ऊपर वाला अभी भी कहाँ पे, बी वाले पॉइंट पे मींस अभी भी वो हवे में है. सो व्हेन लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी, से दिस पॉइंट सी, तो जब ये लाइट बी से सी आएगा तो उतने टाइम में ये लाइट क्या करेगा, क्या यहाँ वेट करेगा, नहीं. तो इसका क्या होगा, अभी रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज होगा, तो ये सेकेंड वाले मीडियम में जाएगा. ये बट सेकेंड वाले मीडियम में जाएगा तो क्या जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, क्या उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रैवल करेगा इन सेकेंड मीडियम? नहीं. यहाँ पे दोनों केस में मीडियम, यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों के लिए तो बी वाला लाइट है और ए वाला लाइट जो ट्रैवल करेगा, दोनों के लिए मीडियम अलग अलग. ये अभी कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, हवे में, बट ये कहाँ पे भी ट्रैवल करेगा, ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, डेंसर मीडियम. सो वी नो कि स्पीड ऑफ लाइट, सिंस स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज व्हाट, lesser as compared to speed of light in rarer medium, that is we can say since C2 is less than C1. C2 is what, speed of light in denser medium, C1 is speed of light in rarer medium. Hence अगर हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें T से, मल्टीप्लाइंग विद T on both the side, तो ये क्या हो गया, C2T, this is C1T. Now C2T is nothing but distance traveled in denser medium. So I am saying this as what, ठीक है, distance traveled in denser medium and distance traveled in rarer medium. तो denser में distance travel कम करेगा. हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था, we took this distance, ये BC का लेंथ लिया और सेम डिस्टेंस A पे रख के हमने इधर आर्क ड्रॉ किया था, है ना, रिफ्लेक्शन में. बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. You take this distance BC, तो BC का लेंथ लो, राउंडर में सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर आता है, देन यू डिक्रीज बाय लाइक इट डिपेंड कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अकॉर्डिंगली डिक्रीज होगा. बट वी विल ड्रॉ लाइक अगर 5 सेंटीमीटर आया तो उसको 3 सेंटीमीटर कर दो अप्रॉक्स. अब 5 आया तो 2 नहीं कर देना है, 5 आया तो लाइक 1 नहीं कर देना है, बहुत डिक्रीज नहीं करना है. अगर 5 सेंटीमीटर आया तो लाइक 3 सेंटीमीटर कर दो, तो ऐसे डिस्टेंस आएगा. वी विल डिक्रीज इट, देन वी विल प्लेस अवर कंपास राउंडर ऑन पॉइंट ए. तो ए वाले पॉइंट पे रख के फिर क्या ड्रॉ करेंगे, आर्क. ओके, ए वाले पॉइंट पे रख के ड्रॉ दिस आर्क लाइक दिस, सच दैट ये डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा, इससे कम आएंगे. ओके, नाउ व्हाट यू डू, नाउ ड्रॉ टैंजेंट फ्रॉम सी टू दिस आर्क. तो ये आर्क पे भी क्या ड्रॉ कर दिया हमने, टैंजेंट. ओके, नो डाउट ये टैंजेंट आपका बहुत जगह पॉइंट मीट करेगा, बट कंसीडर एनी वन पॉइंट, एक पॉइंट कंसीडर करो, दिस पॉइंट. नाउ
pass ray from this point A like this, okay, and parallel to this ray second ray we have to draw. तो सेकेंड रे पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आप एंगल भी ले सकते हो, बट बेसिकली ऐसे थोड़ा माइंड लगा के भी हो सकता है कि इसे थोड़ा पैरेलल लेना है, लाइक दिस. सो ड्रॉ सेकेंड रे पैरेलल टू फर्स्ट, ओके. सो दिस टू हैज टू बी पैरेलल नाउ, and so this is point C, this is point what, D. Now this CD is nothing but our refracted plane wave. तो CD यहाँ पे क्या मिल गया, CD is refracted plane wavefront, refracted plane wavefront, okay. Now as time passes क्या होगा, ये wavefront सेकेंड वाले मीडियम में जाएगा, but while drawing this refracted plane wavefront यहाँ पे जितना गैप है उससे हम यहाँ पे गैप थोड़ा कम दिखाएंगे, क्योंकि सेकेंड वाले मीडियम में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन डेंसर मीडियम विल बी लेसर एज कंपेयर टू डेंसर. तो यहाँ पे हम थोड़ा गैप कम दिखाएंगे, लाइक दिस. This is C1, D1, C2, D2, and since it is wavefront, तो wavefront क्या होगा, वेव नॉर्मल को परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये हम परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, ओके. सो आवर डायग्राम विल बी लाइक दिस, क्लियर. एंड हियर वी कैन सी कि ये जो डिस्टेंस है BC, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज C1 into T, बट दिस डिस्टेंस AD इज नथिंग बट C2 into T. कितना है ये, C2 into T, and C2 into T is what, lesser as compared to C1 into T, means इससे ये वाला डिस्टेंस कम. तो एग्जैक्टली में हुआ क्या कि जब ये लाइट A वाले पॉइंट पे आया तो ये वाला कहाँ पे B, पर जब ये B से कहाँ जाएगा, B से अगर जाएगा C, तो विद इन दैट टाइम ये B से C जाएगा, तो दिस विल ट्रैवल फ्रॉम A टू D सच दैट ये लेंथ और ये वाला, ये दोनों कैसा रहेगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस थोड़ा कम है. वो कितना कम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये सेकेंड वाला मीडियम कितना डेंस है, ओके. नाउ वी हैव टू प्रूव व्हाट, अपने को क्या प्रूव करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें एंगल देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा एंगल आएगा. सो फॉर दैट ड्रॉ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, एंड हियर आल्सो ड्रॉ दिस नॉर्मल, ओके. नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल. सो दिस इज n dash, this is m dash, okay. So this is the angle made by incident ray with normal is angle of incidence, and angle made by refracted ray with normal is angle of refraction, okay. Angle of refraction, same to same यहाँ भी आप बोल सकते हो, this is what angle of incidence and this is what angle of refraction, okay. Now by geometry हमको यहाँ पे कुछ प्रूफ करना है, ये प्रूफ हम इसी में देख लेते हैं. वैसे डायग्राम में डायरेक्टली वी विल यूज दैट कंसेप्ट. बाय ज्योमेट्री क्या होगा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कॉन्सेंट्रेट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंगल NAA1. तो ये NAA1 कितना एंगल है, दिस इज I. व्हाट इज NAB. NAB मीन्स अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, A1AN प्लस NAB. तो ये वेवफ्रंट है और ये वेव नॉर्मल, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90. ये टोटल 90, ओके. कंसंट्रेट, दिस सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी 90, इक्वेशन 1. नाउ दिस प्लस दिस एंगल NAB प्लस BAC इज इक्वल टू व्हाट, 90. तो पहला इक्वेशन क्या मिला, दिस प्लस दिस 90, सेकंड वाला क्या मिला, दिस प्लस दिस 90. तो अगर ये दोनों में कॉमन है तो ये हट जाएगा, इट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो इफ दिस इज I, ये वाला एंगल I है, तो ये भी क्या मिलेगा अपने को, I. ओके, हैव यू अंडरस्टूड क्या किया हमने. तो वी टुक टू इक्वेशन एंड दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके ये मिलेगा, दिस प्लस दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल A1AN प्लस NAB इज इक्वल टू 90, इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन इज NAB प्लस BAC इज इक्वल टू 90, इक्वेशन 2. दोनों को इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट A1AN इज इक्वल टू BAC, मींस बोथ विल बी इक्वल. सो इफ दिस इज I, तो ये भी कितना होगा, I. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें MCQ भी है बहुत सारे. तो जैसे ये एंगल आपको I मिलता है, ये भी समझ आना चाहिए कि कितना है ये I. नाउ इन सेम वे इफ वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्टेड रे, मींस दिस, तो ये एंगल कितना है, R. नाउ व्हाट इज सम ऑफ दिस टू एंगल, दिस प्लस दिस. तो एंगल N dash AD
एन डैश ए डी प्लस डी ए सी, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 90. इक्वेशन नंबर 1, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90. नाउ इक्वेशन 2 इज व्हाट इज द सम ऑफ दिस एंड दिस एंगल. व्हाट इज एंगल DAC प्लस ACD. मीन्स अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा. सिंस दिस इज ट्राइंगल, ट्राइंगल में ऑलरेडी यहाँ पे कितना एंगल है 90, सो रिमेनिंग एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, इट हैज टू बी 90. सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी 90. तो दो इक्वेशन क्या मिला, पहला दिस प्लस दिस 90, सेकेंड इक्वेशन इज दिस प्लस दिस 90. तो ये वाला कॉमन, ये कॉमन है, मीन्स दिस एंगल हैज टू बी इक्वल टू दिस. इट मीन्स कि दिस इज R, तो ये एंगल भी कितना होगा R. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको मेन ये ट्राइंगल में एंगल डिसाइड करने आना चाहिए कि दिस इज I, दिस इज R. देन यहीं से हम प्रूफ करेंगे और अपने को मिल जाएगा. मीन्स वी विल फाइंड, यहाँ से क्या फाइंड करने वाला है, व्हाट इज साइन I, देन वी विल फाइंड साइन R, देन वी विल डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल गेट साइन I अपॉन साइन R दैट इज कांस्टेंट. हेंस इट विल, हेंस वी कैन से कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विल गेट प्रूव्ड. ओके, तो एग्जैक्टली में क्या किया हमने, लेट्स सी वंस अगेन कि हमको क्या देखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव. सो फॉर प्लेन वेव व्हाट वी रिक्वायर सोर्स, एनी सोर्स दैट हैज टू बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. सो व्हेन सोर्स विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो रे ऑफ लाइट कैसा आएगा, पैरेलल. मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अपना हो गया, ठीक है. सो रे ऑफ लाइट कैसा आएगा, पैरेलल. तो ये पैरेलल ही आएगा. नाउ व्हेन दिस रे, सपोज दिस रे विल बी हियर, तो अगर ये रे यहाँ पे है ऐसे, तो व्हेन दिस टू रे विल बी हियर, तो ये अपना लोकस क्या मिलेगा, वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट. देन एज दिस विल मूव, नेक्स्ट प्लेन वेव फ्रंट, नेक्स्ट प्लेन वेव फ्रंट. बट जब ये ऊपर वाला रे डी वाले पॉइंट पे है, तो ऑलरेडी नीचे वाला कहाँ पे आ गया है, वो इंटरफेस पे आ गया है. मीन्स उसका रिफ्रैक्शन होने वाला है, बट ऊपर वाले को रिफ्रैक्शन होने में भी टाइम है. हाँ, तो व्हेन दिस लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम B to C, तो विद इन दैट टाइम इंटरवल ये वाला सेकंड जो नीचे वाला रे है उसको क्या होगा, रिफ्रैक्शन है, वो सेकंड वाले मीडियम में आएगा. बट अभी क्या वो सेकंड वाले मीडियम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, नहीं, क्योंकि सेकंड वाला मीडियम डेंसर है. तो डेंसर मीडियम है, तो फॉर द सेम टाइम डिस्टेंस ट्रैवल इन रेयर इन डेंसर मीडियम विल बी लेसर एज कंपेयर टू रेयर. तो इसमें डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा. तो इसके लिए क्या करना है हमको, कंसीडर दिस लेंथ BC, ओके, दैट इज C1t राउंडर में, एंड क्या करना है, उसका डिस्टेंस थोड़ा कम करना है, उसको डिक्रीज करके पुट एट पॉइंट A, देन ड्रॉ आर्क. ओके, देन आर्क ड्रॉ करके देन क्या करना है, देन आफ्टर दैट फ्रॉम पॉइंट C वाले पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करना है. ड्रॉ दिस टैंजेंट. तो ये हम ड्रॉ करेंगे टैंजेंट. तो दिस टैंजेंट CD will gives us what, refracted plane wave. Now again this refracted plane wavefront will move in forward direction as time passes. तो next अपने को मिलेगा next position C1D1, C2D2, and gap between refracted plane wavefront we have to draw कि it is what, lesser as compared to incident plane wavefront, क्योंकि ये error medium में है और ये denser में है, तो यहाँ पे gap थोड़ा कम दिखाना है. And angle wise ध्यान में क्या रखना है कि this is I, this will be I, this is R, so this will be R. Okay, so this is the refraction of plane wavefront from plane surface. This again I will show you how to draw on paper. Okay, thank you.